اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى امام المتقین وقائد الغر المحجلین یعقوب الدین زین العابدین ازہد الزاہدین امیر المؤمنین الذی دینت محراب والمنبر ساقی سلسبیل والتسنیم والکوثر فاتح بدر وحنین وخیبر قاتل مرحب وانتر الذي عين الله وجه الله سر الله لسان الله صبغة الله آية الله كلمة الله باب الله علم الله جنب الله يد الله حبل الله عين الله وجه الله کرم اللہ غالب کل غالب مطلوب کل علا طالب آنی علی ابن ابی طالب اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولاہ فہذا علی مولا صلوات سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو عید اکبر عید سعید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے اعمال کے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج کے دن مسکرانا بھی ثواب رکھتا ہے۔ جو انسان آج کے دن تبسم کرتا ہے مسکراتا ہے وہ محشر میں بھی مسکرائے گا، وہاں پر روئے گا نہیں، اس لیے کہ آج کے دن ظالم کافر جو ہے مایوس ہوئے تھے، مومن جو ہے خوشحال ہوئے، لہذا خوشیوں کا دن ہے، مسکرانے کا دن ہے، تبسم کرنے کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کا حکم اللہ کی طرف سے نبی پر ہوا، آواز دی اللہ نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول اس چیز کو پہنچا دیجئے جس کا آپ کو حکم ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہاں سے اہمیت غدیر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جو اپنے حبیب کو کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی کالی کملی والا کہہ کر خطاب کر رہا ہے، اسی خدا نے ڈائریکٹ کہا ہے رسول اگر تم نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ لہجے کی تندی آپ دیکھیں قرآن کی، کہا کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اس کا مطلب یہ جو ہے ولایت علی ایک بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ جیسے ہی حکم ہو گیا اللہ نے اپنے رسول سے کہا واللہ یعصمک من الناس، اور میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، آپ پہنچا دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ اس کے بعد نبی نے اہتمام کیا، جو لوگ آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور آپ بہتر جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں غدیر کے حوالے سے۔ غدیر کا مسئلہ تمام کتابوں میں، طرفین میں، شیعہ غیر شیعہ سب میں جو ہے موجود ہے اور ذکر ہے۔ جب تمام اصحاب جمع ہو گئے، 1.25 لاکھ یا 1,25,000 صحابی جب جمع ہو گئے تو نبی نے پالان شکر کا ممبر بنایا۔ کجاووں کا ممبر بنانے کے بعد ممبر پر گئے اور آواز دی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ میں نے مختصر کر دیا، غدیر کا واقعہ بہت طولانی ہے۔ جیسے ہی اعلان کیا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، فوراً ایک شخص نے انکار کیا جس کا نام حارث بن نعمان فہری ہے۔ آپ دیکھیں مولا علی کی کتنی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں۔ جناب نوح کو وہ اہمیت نہیں ملی، جناب آدم کو وہ اہمیت نہیں ملی، جناب شیش کو وہ اہمیت نہیں ملی، جناب نوح کو وہ اہمیت نہیں ملی جو جناب امیر کائنات کو ملی۔ توجہ کیجئے گا، جناب نوح کو کہ جنہیں 2000 سال کی زندگی ملی۔ توجہ کیجئے گا، میں غدیر پر لا رہا ہوں، جسے 2000 سال کی زندگی ملی، کچھ نیا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 2000 سال کی زندگی ملی، 950 سال تک جناب نوح نے تبلیغ کی، اور 200 سال جناب نوح نے کشتی بنائی ہے۔
کشتی جو بنانے میں جناب نوح کو وقت لگا 200 سال کا وقت لگا. اتنا وقت کیوں لگا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح یہ تمہیں نہیں مان رہے ہیں تم کشتی بناؤ, اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اے نوح کشتی بناؤ میری دونوں آنکھوں کے سامنے. نوح نے کشتی بنانا شروع کیا, اللہ کی آنکھ کے سامنے کشتی بن رہی ہے. 200 سال کا وقت کیوں لگ گیا؟ کہ جب جناب نوح کام کر کے جاتے تھے شب میں, اور اس کے بعد کشتی کے دشمن نوح کے دشمن آتے تھے کشتی کو خراب کر دیتے تھے, پھر جناب نوح آتے تھے اثر نو پھر تعمیر کرنے لگتے تھے, لہذا 200 سال کا وقت لگا. اور پھر جب جناب نوح عاجز آ گئے تو اللہ نے کہا نوح اب کشتی کی حفاظت کے لیے اپنے دشمن سے بچنے کے لیے تم کتا رکھو. جناب نوح نے کتا رکھا, اور اس کے بعد جب شب کے سناٹے میں جناب نوح چلے گئے اپنے گھر, اور وہ کشتی کے دشمن نوح کے دشمن کشتی خراب کرنے کے لیے آئے تو کتے نے ان کے اوپر آواز کی. جناب نوح باہر نکل کے آئے, آپ دیکھیں کتا ہے مگر نبی کی مدد کر رہا ہے, جانور ہے مگر نبی کی مدد کر رہا ہے. کتا نبی کی مدد کر کے بتانا یہ چاہتا ہے میں جانور ہو کر ان جانوروں سے بہتر ہوں جو نبی کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. چاہیے کہ میں دل ہو رہی ہے بولے وہ آج بولے حدیث کے دن دشمن سب کے سب وہاں سے بھاگ گئے اور بہت سے ہلاک ہو گئے. آگے بڑھیے, ابراہیم کا زمانہ آیا, ابراہیم اسماعیل کو لے کر جا رہے تھے, شیطان نے بہکانے کی کوشش کی, روکنے کی کوشش کی, جناب ابراہیم نے شیطان کو پتھر مارا, جناب اسماعیل نے شیطان کو پتھر مارا. میں نے شروع سے دیکھا کہ نوح نے اپنے دشمن کو پتھر مارا, ابراہیم نے اپنے دشمن کو پتھر مارا, اسماعیل نے اپنے دشمن کو پتھر مارا. اب میں نے تاریخ میں آخری نبی کا زمانہ بھی دیکھا, آخری نبی کا آخری حج بھی دیکھا, غدیر کا میدان بھی دیکھا, غدیر کے میدان میں بالا میں شتر کا ممبر بھی دیکھا, ممبر پر نبی کو بھی دیکھا, علی کو بھی دیکھا, اور نبی کے لبوں پر یہ جملے دیکھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ایک مرتبہ علی کی ولایت کا منکر وہ آگے بڑھ کر انکار کرتا ہے یا رسول اللہ میں علی کو نہیں مانوں گا, میں علی کا دشمن ہوں. اب میں نے یہ سوچا جس طرح سے نوح نے اپنے دشمن کو پتھر مارا تھا, ابراہیم نے اپنے دشمن کو سنیے گا, ابراہیم نے اپنے دشمن کو پتھر مارا تھا, اسماعیل نے اپنے دشمن کو پتھر مارا تھا. اب غدیر میں یا تو نبی پتھر ماریں گے, کاش کہ آپ بچے, یا تو نبی پتھر ماریں گے یا تو علی پتھر ماریں گے, مگر یہاں قانون بدل گیا, نہ نبی نے پتھر مارا نہ علی نے پتھر مارا. ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے پتھر آیا, میں کہوں گا مالک تیرا نظام کیسے بدل گیا. وہاں پر کہا میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا, تو دیکھ رہا تھا مگر تو نے پتھر نہیں مارا. نوح سے کہا تم پتھر مارو, ابراہیم سے کہا تم پتھر مارو, اسماعیل سے کہا تم پتھر مارو. یہاں غدیر میں تو پتھر مار کے بتانا کیا چاہتا ہے؟ عجب نہیں قدرت آواز دے, وہ نوح کا دشمن تھا لہذا نوح نے پتھر مارا, وہ ابراہیم کا دشمن تھا لہذا ابراہیم نے پتھر مارا, وہ اسماعیل کا دشمن تھا لہذا اسماعیل نے پتھر مارا. جو علی کا دشمن ہوگا وہ تنہا علی کا نہیں خدا کا دشمن ہوگا, لہذا جب دشمن میرا ہے تو پتھر بھی میں ماروں گا. دشمن میرا ہے تو پتھر بھی میں ماروں گا. نام کیا تھا؟ حارث, حارث ابن نعمان فہری. اچھا ایک حارث اور آیا تھا خیبر کے میدان میں, مرحب, انتر اور حارث. حارث کو وہاں پر مولا علی نے مارا تھا, مولا علی نے حارث کو خیبر میں مارا. غدیر میں بھی ایک حارث آیا جسے اللہ نے مارا, یعنی جو اللہ کا دشمن تھا اسے علی نے خیبر میں مارا اس حارث کو, اور جو علی کا دشمن تھا اسے میدان غدیر میں اللہ نے مارا. عجب نہیں اللہ اور علی نے معاہدہ کر لیا ہوگا کہ اے علی گھبراؤ نہیں, جو تیرا دشمن ہوگا اسے میں ماروں گا, جو میرا دشمن ہوگا اسے تو مار دینا.
नकली बहुत सी दलीलें सुनी जो रिवायात से और कुरान से है। अब एक दलील सुन लीजिए अकली। एक नवाब साहब थे और उनका एक गुलाम था, गुलाम बड़ा ज़हीन था, आकिल था। एक पैसे वाले नवाब साहब के पास आए, जो लोग ये कहते हैं कि मौला के मायने यहाँ पर दोस्त के हैं, उसी हाशिए में। और वो जो है गुलाम को नवाब बहुत चाहते थे। पैसे वाला आया, उसने देखा कि नवाब जो है अपने गुलाम को बहुत चाहते नवाब साहब। एक दिन नवाब साहब ने गुलाम से कहा कि जाओ मेरे लिए अनार लेकर आओ, मेहमान आए हैं, अनार लेकर आओ। गुलाम गया और जाने के बाद अनार लेकर आया। वो खाने वाला अनार, अनार दो तरह का होता है, एक जलाने वाला, एक खाने वाला। जो लोग ये कहते हैं मौला के मायने दोस्त के हैं, हाकिम के नहीं है। अच्छा, ये खाने वाला अनार लेकर आया, इसने लाकर दे दिया और जो है नवाब साहब ने उसे इनाम दिया, खुश हुए और अनार को काटा, मिलकर दोनों हजरात ने खाया, जो मेहमान आए थे और नवाब साहब ने। कुछ दिन बाद फिर वही मेहमान आया। आप देखें, जो लोग ये कहते हैं मौला के मायने दोस्त के, फिर वही मेहमान आया और इत्तेफाक से शब रात थी, आतिशबाजी वाला दिन। और नवाब साहब ने कहा जाओ बच्चों के लिए अनार लेकर चले आओ, अनार लेकर चले आओ। और वो जो है खादिम गया और जलाने वाला अनार लेकर चला आया, जलाने वाला अनार लेकर चला आया। अब जो अमीर आदमी था उसने सोचा, जो मिलने आया था नवाब साहब से, उसने सोचा आज तो गुलाम को बहुत डांट पड़ने वाली है, खादिम को नवाब साहब बहुत डांटेंगे। कहा था अनार ले आओ और ये जो है ये वाला अनार लेकर चले आए, इससे पहले खाने वाला लेकर आए थे, अब तो बहुत डांटेंगे। लिहाजा अब ये सोच रहे थे, मगर खादिम को नवाब साहब ने शाबाश कहा और बहुत जो है उनकी तारीफ की। अब जो पैसे वाले थे इन्होंने कहा कि आपने अनार कहा था, ये खाने वाला अनार नहीं लेकर आए, जलाने वाला अनार लेकर चले आए। नवाब साहब ने कहा मेरा गुलाम है, तवज्जो कीजिएगा, मेरा गुलाम है, मेरे जहनियत को जानता है, कानून को जानता है कि कब खाने वाला अनार चाहिए नवाब साहब को, कब जलाने वाला अनार चाहिए। जो सहाबियत का दम बनते हैं उन्हें यही नहीं पता गदीर के मैदान में अली ने दोस्त वाला मौला बनाया था या हाकिमियत वाला मौला बनाया था। एक सलवात पढ़े अहमद आले मोहम्मद। अब देखिए आखिरी वाकया और आखिरी दलील। दो ताजिर थे, अकील सुनिए, दो ताजिर थे और दो ताजिर बहस करते हुए गदीर के हवाले से आ रहे थे। और एक जो है सुन्नी थे, अहले तसन्नुन में से थे, और एक अहले तशय्युअ में से थे। गदीर के हवाले से बहस कर रहे थे। पहले इनकार किया, मगर जब इन्होंने किताबों का हवाला दिया तो वो मान गए कि हाँ कहा, मगर वहाँ पर मौला के मायने दोस्त के हैं, हाकिम के नहीं है। अच्छा, ये बहस करते रहे, आखिर में जो शिया थे उनका घर आ गया और वो जो गैर शिया थे वो अपने घर पहुंचने ही वाले थे। इतने में शिया ने अपने नौकर को भेजा, जाकर उन्हें बुला लाओ, वो जो गए हुए हैं उन्हें बुला लाओ। जैसे ही खादिम ने जाकर कहा, वो पलट कर आए, बड़ी दूर से पलट कर आए, रास्तों की सोबतों को बर्दाश्त करते हुए पलट कर आए। जैसे ही पलट कर आए, सुनिएगा, जो लोग ये कहते हैं यहाँ पर मौला के मायने दोस्त के, जैसे ही पलट कर आए तो कहा कि क्यों बुलाया? कहा मैं बताने के लिए हमने बुलाया है कि आप हमारे दोस्त हैं। और वो जो है बिल्कुल गुस्से में आ गए जो दोस्त थे। उन्होंने कहा ये भी कहने की बात है, अरे हमारी 30 साल पुरानी दोस्ती है, हम तो जानते हैं कि आप हमारे दोस्त हैं। इतनी दूर से मुझे वापस में घर में कदम ही रखने वाला था, रास्ते का थका हुआ था, इतनी दूर से आपने वापस बुलाया और बुलाने के बाद कुछ नया नहीं कहा, यही कहा कि आप हमारे दोस्त हैं। मैं तो जानता हूँ 40 साल से आप मेरे दोस्त हैं। अजब नहीं, ये मुसलमान हैं, मगर इन्हें ये बात बुरी लगी और कहने लगे ये क्या अहमकाना बात आपने की, क्या जाहिलाना बात आपने की, आप तो हमारे दोस्त हैं ही। भैया, जब आज का मुसलमान इस बात पर नाराज हो जाता है कि बताने की क्या जरूरत थी, आप हमारे दोस्त हैं। अगर वहाँ नबी की मुराद दोस्त की होती तो बड़े बड़े सहाबी आगे बढ़कर ये न कहते अली मुबारक हो, आप मोमिन औरतों और मर्दों के मौला बन गए। तू ऐसा जाम मुझे आज फिर पिला, बहकूं अगर तो मुझको दिखाई दे करबला, ना दे
अली का विर्द तू करते हुए बना, फिर सैयदा के पैर का धुआं मिला के ला, तब रंग वो तराब का आएगा जाम में, फिर जाके बांटना तू उसे खासो आम में। वो मैं पियो की जिससे मुकद्दर संभल पड़े, वो मैं पियो की जिससे न माथे पे बल पड़े, वो मैं पियो की गिरते ही शीशा पिघल पड़े। इतना नशा हो मैं में कि खुद जाम चल पड़े, फिर आयते गदीर की हमको सुनाई दे, ऐसा हटे हिजाब के मौला दिखाए। जनाब रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक। देखा हसीन ख्वाब का बदला गदीर में, देखा हसीन ख्वाब का बदला गदीर में, इसलिए अलम बुलंद से हैदर गदीर में। एक साथ चल मगर हुए मिंबर पे दो खतीब, एक साथ चल मगर हुए मिंबर पे दो खतीब, मिंबर का बच्चा था कद्दर गदीर में। मस्जिद नबी अली है तो मिंबर पबी अली, काबा गवाह है दोष पैगंबर पबी अली, हिजरत के साथ रसूल के दिखते पबी अली, जन्नत चली की भी क्या है कौसर पबी अली, हजार ने राबन बजाइए, बचना अली से है तो जहन्नम बजाइए। हैदर अली और मौला मौला बोलेगा, इसके अली में पाक लहूंगा कचरा कचरा बोलेगा। होती है ये बात के बचपन की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। के पते सत्रों के इस बस्ती में नारे हैदर मेरे काब का बच्चा बच्चा बोलेगा। अली मौला मौला, अली मौला मौला, मेरे मौला तेरे मौला, अली मौला मौला, मेरे आका मेरा दरमा मेरा कलमा, अली मौला मेरी दुनिया मेरा काबा मेरा किबला, अली मौला मौला, अली मौला। नफ्से महबूब खुदा नूर जली कहते हैं, नफ्से महबूब खुदा नूर जली कहते हैं, साहिब अम्र इलाही को वली कहते हैं, साहिब अम्र इलाही को वली कहते हैं। मोजज़ात अली सुन सुन के परेशान क्यों हो, जो समझ आ न सके उसको अली कहते हैं। मेरा सुल्तान मेरा ईमान दिले कुरान, अली मौला मेरा सुल्तान मेरा ईमान दिले कुरान, अली मौला। खुदा की शान खुदा का मान, अली नबी की जान, अली मौला। खुदा का शान नबी की जान, अली मौला। शाह मर्दान मुझे रहमान शेरे यज़दान, अली मौला। अली मौला मौला, अली मौला। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आप सबको ईद गरीब ईद रस्म मुबारक। हमें पैदा किया जिसने उसकी बात करते हैं, कि हमें पैदा किया जिसने उसकी बात करते हैं, फिर उसके बाद अपने नबी की बात करते हैं। कि हमें पैदा किया जिसने उसकी बात करते हैं, फिर उसके बाद अपने नबी की बात करते हैं। मिलती है हमें जन्नत से मुबारकबाद के तहफे, कि मिलती है जब हमें जन्नत से मुबारकबाद के तहफे, जब हम अपने घर में मौला अली की बात करते हैं।
کرتا ہے اگر تو اطاعت خدا، کہ کرتا ہے اگر تو اطاعت خدا، تو پھر یہ خدا کے حکم غدیر سے تیرا یہ انکار کیسا؟ کہ کرتا ہے اگر تو اطاعت خدا، تو پھر یہ خدا کے حکم غدیر سے تیرا یہ انکار کیسا؟ کہتا ہے تو رسول کو اپنی جان و مال کا مالک، کہتا ہے رسول کو اپنی جان و مال کا مالک، تو محمد کی جان کی ولایت سے پھر نہ کیسا؟ ایک صلوات جناب میرا حل آپ سب کو عید العید مبارک۔ ایک آواز بلند نعرہ صلوات۔ علی کے نام کا چرچا بہت ضروری ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے۔ جوان ہو گئے مذہب کے نسل کے بچے، جوان ہو گئے مذہب کے نسل کے بچے، امام عصر کا آنا بہت ضروری ہے، امام عصر کا آنا بہت ضروری ہے۔ دشمن حیدر کو جو قریب رکھتے ہیں، دشمن حیدر کو جو قریب رکھتے ہیں، میرا ایسے لوگوں سے فاصلہ ضروری ہے، میرا ایسے لوگوں سے فاصلہ ضروری ہے۔ اہل بیت کے حق کی بات جب بھی آئے گی، اہل بیت کی حق کی بات جب بھی آئے گی، ہر غدیر والے کو بولنا ضروری ہے، ہر غدیر والے کو بولنا ضروری ہے۔ صلوات۔ خون پہ نبی نور کے ایسے ہنر دیے، خون پہ نبی نور کے ایسے ہنر دیے، کتنے دیے ہی روشن عصمت بھر دیے، کتنے دیے ہی روشن عصمت سے بھر دیے، جتنے خلیفتوں کو گروندے کے ریت میں سارے علی کے تاج میں تاراج کر دیے۔ صلوات۔ محمد والے محمد صلوات۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم، آپ سب کو عید غدیر بہت بہت مبارک۔ سورج سے زیادہ علی کا ایمان چمک رہا ہے، سورج سے زیادہ علی کا ایمان چمک رہا ہے، رسول کے لفظوں سے آج اسلام چمک رہا ہے، رسول کے لفظوں سے آج اسلام چمک رہا ہے۔ علی کو یوں مولا بنایا جا رہا ہے غدیر میں، علی کو یوں مولا بنایا جا رہا ہے غدیر میں، خدا نے رسول سے بلوایا ہے من کنت مولا غدیر میں۔ کرم خدا کا مقدر میں امیری ہے، کرم خدا کا مقدر میں امیری ہے، فخر کی بات ہے شجرہ میرا غدیری ہے، فخر کی بات ہے شجرہ میرا غدیری ہے۔ بنائے جاتے ہیں مسجد میں اس لیے ممبر، بنائے جاتے ہیں مسجد میں اس لیے ممبر، نمازیوں کو بھی عید غدیر یاد رہے۔ دیکھا حسین خواب کا منظر غدیر میں، مثل عالم بلند تھا حیدر غدیر میں، ایک ساتھ جلوہ ہوئے ممبر پہ دو خطیب، ممبر کا بن گیا تھا مقدر غدیر میں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ تعمیر دین نام ہے جشن غدیر کا، تعمیر دین نام ہے جشن غدیر کا، بھیجا ہے تاج لفظ نبی کے وزیر کا۔ تعمیر دین نام ہے جشن غدیر کا، بھیجا ہے تاج لفظ نبی کے وزیر کا۔ آؤ علی کی چاہنے والوں خوشی خوشی، آؤ علی کی چاہنے والے خوشی خوشی، یہ جشن ہو رہا ہے جناب امیر کا۔
कोई अली को मौला कहे कोई ना कहे, कोई अली को मौला कहे कोई ना कहे, ये मसला अज़ल से है ज़र्फ़ो ज़मीर का। मुश्किल को उसके कदमों में खुद लौटने लगी, मुश्किल तो उसके कदमों में खुद लौटने लगी, जिसने भी नाम ले लिया कंबल के पीर का। सवाल। कामिल हुआ है दीन खुदा का गदीर में, कामिल हुआ है दीन खुदा का गदीर में, जब नूर दस्ते नूर पे आया गदीर में। कुछ इस तरह रसूल के हाथों पे है अली, कुछ इस तरह रसूल के हाथों पे है अली, जैसे सिमट के आ गया काबा गदीर में, जैसे सिमट के आ गया काबा गदीर में। सीने पे आयतों को उतारा गया मगर, सीने पे आयतों को उतारा गया मगर, नुक्ता नबी के हाथ में उतरा गदीर में, नुक्ता नबी के हाथ में। बाजू उठा उठा के दिखाते रहे रसूल, बाजू उठा उठा के दिखाते रहे रसूल, अंधों ने फिर भी कुछ नहीं देखा गदीर में। चेहरे बता रहे थे बता सबके खून के, चेहरे बता रहे थे बता सबके खून के, नस्लों का इम्तिहान हुआ था गदीर में। मैं चलता हूँ एक बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक बैरूनी शायर, इससे पहले के नवत सुकंदूर चंद मिसरे समाप्त फरमाने इस्तेमाल में कि हारिस के सर पे देख के पत्थर गदीर में। ताबिश जौनपुरी साहब कहते हैं कि हारिस के सर पे देख के पत्थर गदीर में, सर अपना देखने लगे खुद सर गदीर में। हारिस के सर पे देख के पत्थर गदीर में, सर अपना देखने लगे खुद सर गदीर में, तो खालिक का हुक्म पाके सितारों के दरमियां, असहाबियों का नजूम मेरे सहाबी सितारों के मानिंद है। हारिस के सर पे देख के पत्थर गदीर में, सर अपना देखने लगे खुद सर गदीर में, खालिक का हुक्म पाके सितारों के दरमियां, मौला बनाए जाते हैं हैदर गदीर में। मौला बनाए जाते हैं हैदर गदीर में। अब मैं गुजारूं जनाब रोशन मौलानवी साहब से क्यों आए नजराने अक़ीदत पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आवाज़े बुलंद नारे सलवात। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ ये जश्न गदीर का हो रहा है और गदीर के मेंबर पर हो रहा है। गालिबन होते हैं जश्न मगर खड़े होकर लोग पढ़ते हैं, तो सबसे मुबारकबाद इस बात की है कि यहाँ मिंबर रसूल पर बैठ के शबीह मिंबर रसूल पर बैठ के लोग जिक्र गदीर कर रहे हैं। मिलजुल के एक बाबाज वाले नारे सलवात हो रहे हैं। आवाज़ करता हूँ समाप्त फरमाएँ, ये ज़्यादा वक्त नहीं है, जितना भी है उसके दरमियान समाप्त फरमाने के। मेरे खुदा दुआ है ये तुझसे हकीर की, मेरे खुदा दुआ है ये तुझसे हकीर की। गालिबन किबला
मौलाना साहब को जो है शुबा हो गया कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, गलबन मैं तहत पढ़ता हूँ, आवाज़ भी अच्छी नहीं है, मगर अशार जो भी है समाज फरमाने कि मेरे खुदा दुआ है ये तुझसे हकीर की, मेरे खुदा दुआ है ये तुझसे हकीर की, रख मेरी पूरी नस्ल को नौकर गदीर का। मेरे खुदा दुआ है ये तुझसे हकीर की, जुड़ते रहे इंशाल्लाह कि मेरे खुदा दुआ है ये तुझसे हकीर की, रख मेरी पूरी नस्ल को नौकर गदीर का। फिर कर रहे हैं लोग विलायत पर एतराज, फिर आसमां से भेज दे पत्थर गदीर का। मेरे खुदा दुआ है ये तुझसे हकीर की, रख मेरी पूरी नस्ल को नौकर गदीर का। फिर कर रहे हैं लोग विलायत पर एतराज, फिर आसमां से भेज दे पत्थर गदीर का। कि फकत मोमिन को बख्शी है जो दौलत छीन लेता है, फकत मोमिन को बख्शी है जो दौलत छीन लेता है, इबादत से कभी रूहे इबादत छीन लेता है। फकत मोमिन को बख्शी है जो दौलत छीन लेता है, इबादत से कभी रूहे इबादत छीन लेता है। जो दिल जर्रा बराबर नर्म हो ज़हरा के कातिल पर, खुदा उस दिल से हैदर की वलायत छीन लेता है। फकत मोमिन को बख्शी है जो दौलत छीन लेता है, इबादत से कभी रूहे इबादत छीन लेता है। जो दिल जर्रा बराबर नर्म हो ज़हरा के कातिल पर, खुदा उस दिल से हैदर की वलायत छीन लेता है। कि अली ही इल्म भी आलिम भी है अलीम भी है, अली ही इल्म भी आलिम भी है अलीम भी है, अली ही हिकमत खालिक भी है हकीम भी है, अली ही इल्म भी आलिम भी है अलीम भी है, अली ही हिकमत खालिक भी है हकीम भी है, अली जदीद ज़माना भी है कदीम भी है, अली जदीद ज़माना भी है कदीम भी है, अली मुफस्सिर आयात हामीम भी है, अली जदीद ज़माना भी है कदीम भी है, अली मुफस्सिर आयात हामीम भी है। अली का हाथ यदुल्लाह की निशानी है, ये कायनात उसी की लिखी कहानी है। अली का हाथ यदुल्लाह की निशानी है, ये कायनात उसी की लिखी कहानी है। वो फलसफी भी मुदब्बिर भी है अदीब भी है, अजायबात का मजहर भी है अजीब भी है। वो फलसफी भी मुदब्बिर भी है अदीब भी है, अजायबात का मजहर भी है अजीब भी है। वो दस्तरस से बहुत दूर भी करीब भी है, वो दस्तरस से बहुत दूर भी करीब भी है। वो बादशाह ज़माना भी है करीब भी है। अली को लोग समझने में भूल कर बैठे और अपनी सारी इबादत फजूल कर बैठे। अली को लोग समझने में भूल कर बैठे और अपनी सारी इबादत फजूल कर बैठे। कहीं अली कहीं आला कहीं अलीम हो, कहीं अली कहीं आला कहीं अलीम है वो, कहीं अली कहीं आला कहीं अलीम है वो। कलाम पाक में रब ने कहा नईम है वो, कहीं अली कहीं आला कहीं अलीम है वो। कलाम पाक में रब ने कहा नईम है वो, बताया मुरसले आजम ने मुस्तकीम है वो। अरे मुनाफिकों के लिए जाए एहतियात है वो, कदम संभाल के रखना पुले सिरात है वो। मुनाफिकों के लिए जाए एहतियात है वो, कदम संभाल के रखना पुले सिरात है वो, कदम संभाल के रखना पुले सिरात है वो। समाज फरमाए कि बताऊं किस तरह मैं आपको क्या क्या गदीरी है, बताऊं किस तरह मैं आपको क्या क्या गदीरी है। ज़मीन से अर्श आज़म तक हर एक जर्रा गदीरी है, बताऊं किस तरह मैं आपको क्या क्या गदीरी है। ज़मीन से अर्श आज़म तक हर एक जर्रा गदीरी है। ये सभी के लिए कि मेरे घर में कभी फाकों की नौबत आ नहीं सकती, मेरे घर में कभी फाकों की नौबत आ नहीं सकती। जो भी गदीर के दिन 1 दिरहम खर्च करता है उसको 1000 दिरहम अल्लाह की तरफ से अता होते हैं। कि मेरे घर में कभी फाकों की नौबत आ नहीं सकती, मुझे है फख्र मेरा पालने वाला गदीरी है। मेरे घर में कभी फाकों की नौबत आ नहीं सकती, मुझे है फख्र मेरा पालने वाला गदीरी है। गमे शब्बीर में जब खून में डूबा हुआ आया, मेरी माँ फख्र से बोली मेरा बच्चा गदीरी है। गमे शब्बीर में जब खून में डूबा हुआ आया, मेरी माँ फख्र से बोली मेरा, मैं समझ रहा हूँ आप क्या सुनना चाह रहे हैं। सवाल फरमाए कि हैदर की शुजाअत का कसीदा है लबों पर, हैदर की शुजाअत का कसीदा है लबों पर, अब जुल्म के माथे पे पसीना तो रहेगा। हैदर की शुजाअत का कसीदा है लबों पर, अब जुल्म के माथे पे पसीना तो रहेगा। क्यों कर न करे गज़्ब वो ज़हरा के फलक को, खत्ताब का बच्चा है कमीना तो रहेगा। खत्ताब का
बच्चा है कमीना तो रहेगा कि करम करे जो खुदाए खदीर काबे में, करम करे जो खुदाए खदीर काबे में, करेंगे जश्न जनाबे अमीर काबे में, करम करे जो खुदाए खदीर काबे में, करेंगे जिक्र जनाबे अमीर काबे में, कि लगेंगे सीने बातिल पर वो गदीर के दिन, रखे हुए हैं विलायत के तीर काबे में, लगेंगे सीने बातिल पर वो गदीर के दिन, रखे हुए हैं विलायत के तीर काबे में, सिला तवाफ हरम का उसे मिला ही नहीं, हुआ है दुश्मन हैदर असीर काबे में, सिला तवाफ हरम का उसे मिला ही नहीं, हुआ है दुश्मन हैदर असीर काबे में, और मेरे इमाम का हो जाए गर ज़हूर अभी अभी मनाएंगे जश्न गदीर काबे में, मेरे इमाम का हो जाए गर ज़हूर अभी, मेरे इमाम का हो जाए गर ज़हूर अभी मनाएंगे जश्न गदीर काबे में, कि आयतों पर आयतें नुक्ते पे नुक्ता चाहिए, आयतों पर आयतें नुक्ते पे नुक्ता चाहिए, और कलम बंदी की खातिर शाख तूबा चाहिए, एक मंजिल पे ले जा रहा हूँ, आयतों पर आयतें नुक्ते पे नुक्ता चाहिए, और कलम बंदी की खातिर शाख तूबा चाहिए, रोशनाई के लिए दरिया ज़मीन पे तास हो, और फिर बाबे मदीना का सहारा चाहिए, लिखने बैठे अंबिया हुरो मलाइक जिन और इंस, और सदाए ज़माने पर ज़माना चाहिए, ये हिजाबुल्लाह की मिदत है नामुमकिन है ये, इसकी खातिर मंजिल सिदरा का जीना चाहिए, कीजिए मेरी मदद मौला अली मुश्किल कुशा, आज दरियाए सुखन से एक खतरा चाहिए, फातिमा उम्मो अबीहा सैयदा ज़हरा बतूल, बस इन्हीं नामों की बरकत से खसीदा चाहिए, ये नमक पानी हवा सब फातिमा का मेहर है, ये नमक पानी हवा सब फातिमा का मेहर है, दुश्मने ज़हरा तुझे अब मर ही जाना चाहिए, ये नमक पानी हवा सब फातिमा का मेहर है, ये नमक पानी हवा सब फातिमा का मेहर है, दुश्मने ज़हरा तुझे अब मर ही जाना चाहिए, कि इस जहां से उस जहां तक रास्ता कुछ और है, इस जहां से उस जहां तक, जल्दी नहीं पढ़ाओ, इस जहां से उस जहां तक रास्ता कुछ और है, तुम समझ सकते नहीं ये फलसफा कुछ और है, इस जहां से उस जहां तक खुला समा फरमाए, इस जहां से उस जहां तक रास्ता कुछ और है, तुम समझ सकते नहीं ये फलसफा कुछ और है, या अली कहकर पढ़ो तो फायदा कुछ और है, फिर कहो या फातिमा इसकी जजा कुछ और है, या अली कहकर पढ़ो तो फायदा कुछ और है, फिर कहो या फातिमा इसकी जजा कुछ और है, देख कर सर पर निशान मातम का वापस चल दिए, ये फरिश्तों ने ना पूछा पास क्या कुछ और है, देख कर सर पर निशान मातम का वापस चल दिए, ये फरिश्तों ने ना शेर समात फरमाया, ये फरिश्तों ने ना पूछा पास क्या कुछ और है, कि खुतबे ज़ैनब से इतना बौखलाया है यजीद, खुतबे ज़ैनब से इतना बौखलाया है यजीद, बोलना कुछ चाहता है बोलता कुछ और है, खुतबे ज़ैनब से इतना बौखलाया है यजीद, खुतबे ज़ैनब से इतना बौखलाया है यजीद, बोलना कुछ चाहता है बोल। आखिरी कलाम में एक मल्ला चमशा समाप्त करना इंशाअल्लाह के किए हैं जुल्म पर सरवर ने इतने बार मक्तल में, किए हैं जुल्म पर सरवर ने इतने बार मक्तल में, कि बैत हो गई है आप ही मिसमार मक्तल में, कभी खंजर से कटते थे गले पर मुजिजा ये है, गलों ने काट दी है खंजरों की धार मक्तल में, यजीदे बेहया 6 माह के हैदर से हारा है, गिरी है एक तबस्सुम से तेरी सरकार मक्तल में। एक शेर के लिए इतनी जहमत दिया, आपको एक शेर सुन लें आखिरी कलाम में, कि किए हैं जुल्म पर सरवर ने इतने बार मक्तल में, कि बैत हो गई है आप ही मिसमार मक्तल में, कभी खंजर से कटते थे गले पर मुजिजा ये है, गलों ने काट दी है खंजरों की धार मक्तल में, यजीदे बेहया 6 माह के हैदर से हारा है, गिरी है एक तबस्सुम से तेरी सरकार मक्तल में। बीबी सकीना दरबार यजीद में अपनी फूफी से फरमा रही है, समात फरमाए कि फूफी जा मैं सकीना फातह खैबर की पोती हूँ, फूफी जा मैं सकीना फातह खैबर की पोती हूँ, फूफी जा मैं सकीना फातह खैबर की पोती हूँ, इजाजत है उलट दूँ शाम का दरबार मक्तल में, फूफी जा मैं सकीना फातह खैबर की पोती हूँ, फूफी जा मैं सकीना फातह खैबर की पोती हूँ, इजाजत है उलट दूँ शाम का दरबार मक्तल में, इजाजत है उलट दूँ के ज़ेर तुर्बत नूर खालिद की ज़ियारत हो गई, ज़ेर तुर्बत नूर खालिद की ज़ियारत हो गई, मोमिनों के वास्ते अब खब्र जन्नत हो गई, ज़ेर तुर्बत नूर खालिद की ज़ियारत हो गई, मोमिनों के वास्ते अब खब्र जन्नत हो गई, जब हुआ बीमार में फसले अज़ा के दरमियाँ खून का पुरसा दिया बेहतर तबीयत हो गई, जब हुआ बीमार में फसले अज़ा के दरमियाँ खून का पुरसा दिया बेहतर तबीयत हो गई, कि हश्र में वो होंठ भी चमकेंगे मिसले आफ़ताब, कातिले ज़हरा पर जिन होठों से लानत हो गई, हश्र में वो होंठ भी चमकेंगे मिसले आफ़ताब, हश्र में वो होंठ भी चमकेंगे मिसले आफ़ताब,
कातिल ज़हरा बजी होठों से लानत हो गई बाबा अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बेहतरीन जो है अशार आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे और आप बेहतरीन अशार पेश फरमा रहे थे। देखिए मैं 11 बजे से पढ़ रहा हूँ, लिहाजा हमारा कोटा पूरा हो गया, उसके आगे हम जो है नहीं पढ़ेंगे। एक शेर से बेहतरीन शायर, नौजवान शायर, बेहतरीन तहत के बेहतरीन आवाज़ के मालिक को आवाज़ देना चाहता हूँ। ठीक है, गदीर में कुछ लोग जो आ रहे थे तमाम असाब वो हल्क करके आए थे, यानी हज में जो इंसान जाता है तो सर जो है मुड़ाता है, और गदीर में धूप इतनी थी, रिवायत कहती कि जो लोग खुतबा सुन रहे थे इतनी ज़्यादा धूप थी कि तमाम असाब जो खड़े थे उनके पाँव जल रहे थे, नालैन जबकि पहने हुए थे उसके बाद भी पाँव जल रहे थे, और उन्होंने उससे बचने के लिए कपड़े को जो है बिछा रखा था, उसके ऊपर खड़े थे, फिर भी जो है उन्हें गर्मी महसूस हो रही थी। जब पाँव इतने जल रहे थे तो जो सर जो है मुंडा हुआ है वो कितना जल रहा होगा। शायर ने इसी मंजर को पेश किया कि बुग़्ज़े अली में देखिए, रहमान आफी साहब को दावत सुबह देने से पहले एक शेर कि बुग़्ज़े अली में देखिए दोहरी सजा मिली, बुग़्ज़े अली में देखिए दोहरी सजा मिली, दिल जल रहा था बुग़्ज़ में और सर धूप में। बुग़्ज़े अली में देखिए दोहरी सजा मिली, दिल जल रहा था बुग़्ज़ में और सर धूप में। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जनाब रहमान आफी फैज़ाबादी साहब से दुआएं निगरानी अक़ीदत पेश करें और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। नारे हैदरी हाज़िरीन जश्न, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो आप सबकी खिदमत में रोज़े विलायत मौलाए गदीर जनाब अमीर हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और क्योंकि उसी सिलसिले से ये जश्न मुनक़्क़िद है लिहाजा यहीं से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मुलाज़ा फरमाया हाज़िर करता हूँ कि बजुज़ अली ये सिफत और किसकी ज़ात में है। मुलाज़ा फरमाया ये गदीर का रोज़ है और गदीर के रोज़ मौलाए कायनात को मौला बनाया गया है, और वहाँ 1.25 लाख हाजियों के मजमे ने भी दोनों हाथ को बुलंद करके इस बात की तायीद की थी। ये अलग बात है, बाद में मुकर गए थे, उसी का जिक्र है। आप हज़रात एक एक हाथ भी बुलंद कर देंगे तो काम चल जाएगा। मुलाज़ा फरमाए कि बजुज़ अली ये सिफत और किसकी ज़ात में है, बजुज़ अली ये सिफत और किसकी ज़ात में है, वो जिसका तज़किरा कुरान की बात बात में है। मुलाज़ा फरमाए बजुज़ अली ये सिफत और किसकी ज़ात में है, बजुज़ अली ये सिफत और किसकी ज़ात में है, वो जिसका तज़किरा कुरान की बात बात में है। अभी भी वक्त है मौला अली मदद कह दो, वो क्या बचाएगा जो खुद ही मुश्किलात में है। लगना चाहिए कि जश्न हो रहा है और अली की विलायत का जश्न हो रहा है। बजुज़ अली ये सिफत और किसकी ज़ात में है, वो जिसका तज़किरा कुरान की बात बात में है। अभी भी वक्त है मौला अली मदद कह दो, वो क्या बचाएगा जो खुद ही मुश्किलात में है, वो क्या बचाएगा जो खुद ही मुश्किलात में है। क्यों कर करूँ न शुक्र का सजदा में रात दिन, क्यों कर करूँ न शुक्र का सजदा में रात दिन, हूँ खुश नसीब के मेरा मौला अमीर है। चौथा मित्रा जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सुने। क्यों कर करूँ न शुक्र का सजदा में रात दिन, हूँ खुश नसीब के मेरा मौला अमीर है। यूं तो बहुत सी ईद है इस्लाम में, मगर मोमिन की ईद असल में ईद गदीर है। यूं तो बहुत सी ईद है इस्लाम में, मगर मोमिन की ईद असल में ईद गदीर है।
مومن کی عید اصل میں عید غدیر ہے. اسے ملاحظہ فرماتے جائیں. مومن کی عید اصل میں عید غدیر ہے. عبادتوں کا سلیقہ سکھا دیا جس نے, عبادتوں کا سلیقہ سکھا دیا جس نے, اسی علی کو ہم اپنا امیر کہتے ہیں. سنیے پھر سے تیسرا چوتھا مصرع. عبادتوں کا سلیقہ سکھا دیا جس نے, اسی علی کو ہم اپنا امیر کہتے ہیں. ان آنسوؤں کی قسم جو بہے حسین کے نام, خوشی کی آخری حد کو غدیر کہتے ہیں. ان آنسوؤں کی قسم جو بہے حسین کے نام, ان آنسوؤں کی قسم جو بہے حسین کے نام, خوشی کی آخری حد کو غدیر کہتے ہیں. کون ہے کیسا ہے انسان علی جانتے ہیں, کون ہے کیسا ہے انسان علی جانتے ہیں. کس کو بہکائے گا شیطان علی جانتے ہیں. کون ہے کیسا ہے انسان علی جانتے ہیں. کس کو بہکائے گا شیطان علی جانتے ہیں. یوں تو ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں. سنیے دوسرا مصرع. کون ہے کیسا ہے انسان علی جانتے ہیں. کس کو بہکائے گا شیطان علی جانتے ہیں. یوں تو ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں. کس کا مضبوط ہے ایمان علی جانتے ہیں. کون ہے کیسا ہے انسان علی جانتے ہیں. کس کو بہکائے گا شیطان علی جانتے ہیں. یوں تو ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں. کس کو بہکائے گا شیطان علی جانتے ہیں. یوں تو ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں. کس کا مضبوط ہے ایمان علی جانتے ہیں. یہ بتاتا ہے محمد کو سنانا قرآن, یہ بتاتا ہے محمد کو سنانا قرآن. کس پہ اترے گا یہ قرآن علی جانتے ہیں. یہ بتاتا ہے محمد کو سنانا قرآن. کس پہ اترے گا یہ قرآن علی جانتے ہیں. ابھی پیغام نہیں لائے ہیں جبریل مگر, غدیر کا جشن ہے. ابھی پیغام نہیں لائے ہیں جبریل مگر, کیا کریں گے نبی اعلان علی جانتے ہیں. ابھی پیغام نہیں لائے ہیں جبریل مگر, ابھی پیغام نہیں لائے ہیں جبریل مگر, کیا کریں گے نبی اعلان علی جانتے ہیں. تم تو ہنستے ہو کہ مردہ کی پڑھا دی ہے نماز, تم تو ہنستے ہو کہ مردہ کی پڑھا دی ہے نماز. جسم میں ہے کہ نہیں جان علی جانتے ہیں. تم تو ہنستے ہو کہ مردہ کی پڑھا دی ہے نماز, تم تو ہنستے ہو کہ مردہ کی پڑھا دی ہے نماز. جسم میں ہے کہ نہیں جان علی جانتے ہیں. وہ نجف مجھ کو بلائیں گے یقیناً اے رمان, میرے دل کے سبھی ارمان علی جانتے ہیں. وہ نجف مجھ کو بلائیں گے یقیناً اے رمان, میرے دل کے سبھی ارمان علی جانتے ہیں. ایک سلمان کا سارا دے دیا حضرات. حاضر کرتا ہوں یہیں سے ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں یہیں سے کہ میدان خم میں دیکھیے چرچا علی کا ہے. سنیے غدیر, میدان خم میں دیکھیے چرچا علی کا ہے. لب مصطفیٰ کی اور قصیدہ علی کا ہے. اب تھوڑا سا جاگ کے سنیے گا یہاں سے. حاضر کرتا ہوں آخری کلام میں سنیے. میں منبر غدیر خم کا ہے, چرچا علی کا ہے. لب مصطفیٰ کے اور قصیدہ علی کا ہے. آنا پڑے گا اس کو پلٹ کر غروب سے, آنا پڑے گا اس کو پلٹ کر غروب سے. سورج بھی جانتا ہے اشارہ علی کا ہے. آنا پڑے گا اس کو پلٹ کر غروب سے, آنا پڑے گا اس کو پلٹ کر غروب سے. سورج بھی جانتا ہے اشارہ علی کا ہے, سورج بھی جانتا ہے اشارہ علی کا ہے. باطل سنبھل نہ پائے گا خطبے کے وار سے, باطل سنبھل نہ پائے گا خطبے کے وار سے. زینب کی ہے زبان تو لہجہ علی کا ہے. اب سنیے, 4 سے 5 شعر آخری پڑھتا ہوں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. سنیے, حاضر کر رہا ہوں یہیں سے. میدان خم میں دیکھیے چرچا علی کا ہے. لب مصطفیٰ کی اور قصیدہ علی کا ہے. آنا پڑے گا اس کو پلٹ کر غروب سے. سورج بھی جانتا ہے اشارہ علی کا ہے, سورج بھی جانتا ہے اشارہ علی کا ہے. باطل سنبھل نہ پائے گا خطبے کے وار سے. زینب کی ہے زبان تو لہجہ علی کا ہے. کہتی تھی موت دین کے دشمن سے جنگ میں کیسے چھوڑ دوں تجھے حملہ علی کا ہے. کہتی تھی موت دین کے دشمن سے جنگ میں, کہتی تھی موت دین کے دشمن سے جنگ میں کیسے چھوڑ دوں تجھے حملہ علی کا ہے. فوجیں یہ کہہ کے بھاگی ہیں غازی کو دیکھ کر,
فوجیں یہ کہہ کے بھاگی ہے غازی کو دیکھ کر، بے تیغ ہے تو کیا ہوا بیٹا علی کا ہے۔ فوجیں یہ کہہ کے بھاگی، آخری دو شعر پڑھ لو اس کے بعد التماس سے دعا۔ فوجیں یہ کہہ کے بھاگی ہے غازی کو دیکھ کر، بے تیغ ہے تو کیا ہوا بیٹا علی کا ہے، آ کر وہ لے گا دشمن حیدر سے انتقام، پردے میں بیٹھا آج بھی بیٹا علی کا ہے۔ آ کر وہ لے گا دشمن حیدر سے انتقام، پردے میں بیٹھا آج بھی بیٹا علی کا ہے۔ ماہ ازا قریب ہے نا، آ کر وہ لے گا دشمن حیدر سے انتقام، پردے میں بیٹھا آج بھی بیٹا علی کا ہے۔ ماہ ازا میں خرچ یہی سوچ کر کرو، ماہ ازا میں خرچ یہی سوچ کر کرو، جو کچھ بھی اپنے پاس ہے سارا علی کا ہے۔ ماہ ازا میں خرچ یہی سوچ کر کرو، ماہ ازا میں خرچ یہی سوچ کر کرو، جو کچھ بھی اپنے پاس ہے سارا علی کا ہے۔ جو کچھ بھی ماہ ازا میں خرچ یہی سوچ کر کرو، جو کچھ بھی اپنے پاس ہے سارا علی کا ہے۔ اپنی رومان آج کے دن ہے یہی دعا، آنکھوں سے دیکھ آئے جو روضہ علی کا ہے۔ اپنی رومان آج کے دن ہے یہی دعا، آنکھوں سے دیکھ آئے جو روضہ علی کا یہ تھے جناب سلیمان عاطف صاحب، بہترین اشعار پیش فرما رہے تھے۔ آپ کے اشعار کی بھی واہ اور آپ سب کے واہ کی بھی واہ۔ ہمیں گزارش جناب حیدر صاحب سے دعائیں نذرانے عقیدت پیش کریں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ آواز بلند نعرہ سلوات۔ یہ ہر آن یا علی، مانگا ہے رب سے آپ کا عرفان یا علی، بھولی نہیں المائدہ کی آیتیں ہمیں، حیات اپنی تم تو میدان یا علی، روکا تھا جو خسر خم رسول نے، ممبر بنے تھے آپ کا پالان یا علی، میدان میں غدیر کے کہتے تھے مصطفیٰ، تم ہو میرے وسیع ہو میری جان یا علی، عملتے تھے رات بخش کے مارے سبھی وہاں، خوشتے جہاں پہ بھی سب مسلمان یا علی، دشمن ہے جو بھی آپ کا دشمن خدا کا ہے، لعنت ہے ان پہ بل سر قرآن یا علی، سستے منافقین گزرتے تھے رات دن، سچے سبھی سے آپ سے قربان یا علی، چھٹلا کے تم میں فخر سے فرمان مصطفیٰ، دو بیٹھے ہاتھ جان سے نادان یا علی، ہوتی نہیں نصیب میں ہر ایک سے یہ بلا، کرتے ہیں عشق آپ سے خاکان یا علی، ارشاد کی حیات امانت ہے آپ کی، چھوڑا میں نے آپ کا دامان یا علی، آؤ خوشیاں دل سے مناؤ، آج ہے جشن عید غدیر، حیدری نعرہ مل کے لگاؤ، آج ہے جشن عید غدیر، ہر گھر میں ہر قریے میں ہر شہر میں سارے ملکوں میں، دنیا میں اعلان کراؤ، آج ہے جشن عید غدیر، ایک منبر ہم نے بھی سجایا ہے اپنی اس محفل میں، تارے توڑ کے عرش دلاؤ، آج ہے جشن عید غدیر، رب نے کہا اعلان ولایت صرف زبانی کافی نہیں، ہاتھوں پہ حیدر کو اٹھاؤ، آج ہے جشن عید غدیر، حیدر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ فرمایا احمد نے، مومن سارے خوش ہو جاؤ، آج ہے جشن عید غدیر، کہنے لگے سلمان و ابوذر کمبر جندب میدان میں، جام ولایت سب کو پلاؤ، آج ہے جشن عید غدیر، ایسے علی کے حکمداروں نے دل سے ملائے دل اپنے، ویسے تم دل سے ملاؤ، آج ہے جشن عید غدیر، ہم ہیں غدیری ہم مولائی ہم مومن ہم حیدری ہیں،
अपने अकीदे खुल के बताओ आज है जश्न ईद गदीर। मौला अली के चाहने वालों बात भी मानो मौला की, कुछ तो अमल करके भी दिखाओ आज है जश्न ईद गदीर। सारे नबी मैदाने खुद में करते हैं बैत मौला की, हाथों को तुम सब भी बढ़ाओ आज है जश्न ईद गदीर। देख लो रिज़वाने जन्नत के हैदरियों की महफिल है, आकर तुम शामिल हो जाओ आज है जश्न ईद गदीर। नबी ने आज सहरा में नया मिंबर बनाया है, अज़ल से ही जो मौला था उसे सबको दिखाया है। खुदा ने खुद कलामे पाक में जिनको कहा अपना, इन्हीं हाथों में मिंबर पर खुदा का हाथ आया है। खुदा के हुक्म से मिंबर पे दो ऐसे खतीब आए, खुदा ने जिनकी उल्फत में जहाँ सारा सजाया है। पानी को लेके हाथों पर किया ऐलान सहरा में, जो बहरों को दिखाया है और अंधों को सुनाया है। किया गौरा असर लोगों पे ऐलाने विलायत में, मुनाफिक को जलाया है दिले मोमिन जिलाया है। विलायत की महक पे जानशीनी की फवारे हैं, दिले मोमिन में सहरा का हसी मंजर समाया है। वसी मैदान है पुरनूर है माहौल सहरा का, ये वो तकरीब है जिसमें फरिश्तों को बुलाया है। आया है काबा की तवाफ़े मुर्तज़ा करने, अली ने मिस्ल काबा ये मोहब्बत ने बताया है। गले मिलकर गवाही दी है हैदर की विलायत की, गदीरे कुम का हमने जश्न यूं मिलकर मनाया है। हमारे हैं खुदा मौला नबी मौला अली मौला, ये रिज़वान बचपन से ये मानी सिखाया है। जनाब हैदर साहब ने बताया जनाब ईसान साहब से दुआएं नजर में आखिरत पे लिख रहे हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर एक चाहने वाले को होश बख्शेगी, हर एक चाहने वाले को होश बख्शेगी। मैं विलाए अली है अदब से पीते रहो, हर एक चाहने वाले को होश बख्शेगी। मैं विलाए अली है अदब से पीते रहो, हर एक चाहने वाले को होश बख्शेगी। मैं विलाए अली है अदब से पीते रहो। कुछ इस तरह से मनाओ गदीर की खुशियाँ, कुछ इस तरह से मनाओ गदीर की खुशियाँ। हुसैन करबो बला से कहें कि जीते रहो। इत्तिजा हुए जो चाहने वाले गदीर में, इत्तिजा हुए जो चाहने वाले गदीर में, नादिल हुए ज़मीं से उंजाले गदीर में। इत्तिजा हुए जो चाहने वाले गदीर में, नादिल हुए ज़मीं से उंजाले गदीर में। और बुग़्ज़े जनाबे हैदरे करार के सबब कुछ लोग जल के हो गए काले गदीर। मेरे मौला का जहाँ जिक्र मुसलसल हो जाए, क्या ताज्जुब ज़मीं अज से अफजल हो जाए। मेरे मौला का जहाँ जिक्र मुसलसल हो जाए, क्या ताज्जुब ज़मीं अज से अफजल हो जाए। और आज महफिल में लगे ऐसा गदीरी नारा, जिसको सुन ले जो सकीफाई तो पागल हो जाए। और दुनिया में जब गदीर का मंजर लिखा गया, दुनिया में जब गदीर का मंजर लिखा गया, हैदर को जानशीन पैगंबर लिखा गया। दुनिया में जब गदीर का मंजर लिखा गया, हैदर को जानशीन पैगंबर लिखा गया। और खालिक ने नूर चांद को बख्शा है बाद में, खालिक ने नूर चांद को बख्शा है बाद में। सीने को पहले चांद के हैदर लिखा गया, खालिक ने उन दरख्तों को मीठे समर दिए, पत्तों पे जिनकी अकबर व असगर लिखा गया।
नारे सलवार। अली के इश्क में हर इम्तिहान दे दूंगा, अली के इश्क में हर इम्तिहान दे दूंगा। मेरी भाई, अली के इश्क में हर इम्तिहान दे दूंगा, है नाम ही समय तमार जान दे दूंगा। अली के इश्क में हर इम्तिहान दे दूंगा, है नाम ही समय तमार जान दे दूंगा। अली के जिक्र की खैरात अगर दबा होगी, अली के जिक्र की खैरात अगर दबा होगी, मैं खुद ही काट के अपनी ज़बान दे दूंगा। खुद ही काट के ऐसी अपनी ज़बान दे दूंगा। अब भुला ना पाएगा जिसको जहाँ क़यामत तक, भुला ना पाएगा जिसको जहाँ क़यामत तक, फरोज़ेदार से ऐसी अज़ान दे दूंगा। जनाब शारिब आजमी साहब से गुजारिश है कि पेश करें मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बावाज़ बुलंद नारे सलवार। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। खुदा की कसम है इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। निकल कर अंधेरों के नरगे से हुर्जा दरे शह पे आया सवेरे सवेरे। निकल कर अंधेरों के नर से, निकल कर अंधेरों के नरगे से हुर्जा दरे शह पे आया सवेरे सवेरे। तो ज़हरा के बेटे ने एक पल में उसका मुकद्दर जगाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मलाइक ने जिस बात मदहो सना की फिजाओं में गूंजी सदाया अली की। मलाइक ने जिस बात मदहो सना की फिजाओं में गूंजी सदाया अली की। परिंदों ने भी अपनी बोली में नारा अली का लगाया सवेरे सवेरे। है मर्जी हसनैन मर्जी खुदा की, अभी सैयदा की लबों पर दुआ थी। है मर्जी हसनैन है मर्जी खुदा की, अभी सैयदों की लबों पर दुआ थी। लिबासे जिना लेके रिज़वान जन्नत दरे खटखटाया सवेरे सवेरे। महक बागे इस्मात की हर सिमत फैली लगायूं के आमा हुई सैयदा की। महक बागे इस्मात की
महक बागे इस्मात की हर सिमत फैली, लगायूं के आमा हुई सैयदा की। यूं ही मैंने घर में हदीसे के साकी, दिए को जलाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा गुनगुनाया सवेरे सवेरे। जनाब हाजी अंसार साहब जिम्मेदार नजराना तलब पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इसके बाद आखिरी शायर मौलाना इतलाक गाजी गुरु साहब हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इस बात का एहसास है कि आप लोग बहुत थक गए हैं, भूख भी लगी हुई है, लेकिन ये ईद गदीर की महफिल है, इसमें भूख प्यास सब भूल जाते हैं लोग। एक सलवार भेजे मोहम्मद वाले इधर है जगह आ जाइए। वो लोग बाहर हैं, बराए मेहरबानी आते हैं, बस एक दो शोरा और हैं, उनको भी सुन लें और सवाब में शामिल हो जाएं। सलमान भाई के मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इससे बेहतर सलमान देखना मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और इससे बेहतर गर नबी को दे दिया होता मियाँ कागज कलम, गर नबी को दे दिया होता मियाँ कागज कलम, जाहिलों की भीड़ कम होती मुसलमानों के बीच। गर नबी को दे दिया होता मियाँ कागज कलम, जाहिलों की भीड़ कम होती मुसलमानों के बीच। जाहिलों की भीड़ कम होती मुसलमानों के बीच। और दीन की तबलीग में बिस्तर लिए फिरते हैं क्यों? दीन की तबलीग में बिस्तर लिए फिरते हैं क्यों? अरे फंस गया है आज क्या इस्लाम बंजारों के बीच। दीन की तबलीग में बिस्तर लिए फिरते हैं। दीन की तबलीग में बिस्तर लिए फिरते हैं क्यों? फंस गया है आज क्या इस्लाम बंजारों के बीच। फंस गया है आज क्या इस्लाम बंजारों के बीच। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले कि जो लोग हज कर चुके हैं वो जानते हैं अल्लाह सबको ये दिन दिखाया। जो लोग जा चुके हैं वो जानते हैं, और बच्चे जान लें कि जब हज करने जाते हैं वहाँ 4 पत्थर हैं। एक तो संगे अस्वद है जो करबला से आया है और काले रंग का है, और 3 पत्थर जिनका आप जानते हैं चारों में बता दूं कि शेर समाज फरमाए कि सलमान भेजे मोहम्मद वाले कि संगे अस्वद देखकर काबे में ये आया ख्याल। संगे अस्वद देखकर काबे में ये आया ख्याल। एक बेहतर है यहाँ भी 3 शैतानों के बीच। संगे अस्वद देखकर काबे में ये आया ख्याल। काबे में ये आया ख्याल।
संगे अजमत देखकर काबे में ये आया ख्याल, एक बेहतर है यहाँ भी इन शैतानों के बीच, एक बेहतर है यहाँ भी तीन शैतानों के बीच। अरे जब कभी जाना मदीने ये भी मंजर देखना, समझ फरमाए, जब कभी जाना मदीने ये भी मंजर देखना, एक शगुफ्ता फूल है दो जंगली कांटों के बीच। संगे अजमत देखकर काबे में ये आया ख्याल, एक बेहतर है यहाँ भी तीन शैतानों के बीच। जब कभी जाना मदीने ये भी मंजर देखना, एक शगुफ्ता फूल है दो जंगली कांटों के बीच, एक शगुफ्ता फूल है दो जंगली कांटों के बीच। एक शगुफ्ता फूल है दो जंगली कांटों के बीच। अफसोस तुम्हारी ये निगाहों की खता है, अफसोस तुम्हारी ये निगाहों की खता है। कहते हो गनी उसको जो टुकड़ों पे पला है, अफसोस तुम्हारी ये निगाहों की खता है, अफसोस तुम्हारी ये निगाहों की खता है। कहते हो गनी उसको जो टुकड़ों पे पला है, कहते हैं गनी उसको जो टुकड़ों पे पला है। खा खा के खदीजा के औलाद ही का सदका, खा खा के खदीजा के औलाद ही का सदका, जो चल नहीं सकता था वो ऐंठ रहा है, जो चल नहीं सकता था वो अब ऐंठ रहा है। खा खा के खदीजा के औलाद का ही सदका, जो चल नहीं सकता था वो अब ऐंठ रहा है। कहते हो गनी उसको जो टुकड़ों पे पला। सलवार भेजते एक दो शेर तमाम सलवार भेजने से बेहतर ये बेदार कर गए हैं जमीनों को शाहिदी, बेदार कर गए हैं जमीनों को शाहिदी। मुफ्ती तुबीने हक ने अब अपनी चला के देख। शेर समाज पढ़ना है अली भाई समाज पढ़ना है, बहुत कीमती शेर पढ़ रहा हूँ कि बेदार कर गए हैं जमीनों को शाहिदी, बेदार कर गए हैं जमीनों को शाहिदी। मुफ्ती तू दीने हक ने अब अपनी चला के देख, मुफ्ती तू दीने हक में अब अपनी चला के देख। अरे अपने ही तुझको मारेंगे मस्जिद में ढूंढ कर, अपने ही तुझको मारेंगे मस्जिद में ढूंढ कर। तू नमाज जुमा की बुत को पढ़ा के देख, तू नमाज जुमा की बुत को पढ़ा के देख। मोहम्मद वाले मिलेगा सबको एक शेर समाज पढ़ना है। सलमान भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान। क्या कह दिया रसूल ने ऐसा गदीर में, क्या कह दिया रसूल ने ऐसा गदीर में, उतरा है क्यों जनाब का चेहरा गदीर में। क्या कह दिया रसूल ने ऐसा गदीर में, उतरा है क्यों जनाब का चेहरा गदीर में, उतरा है क्यों जनाब का चेहरा गदीर में। अरे लाखों थे पर ये अपने मुकद्दर की बात है, लाखों थे पर ये अपने मुकद्दर की बात है। चमका है बस अली का ही सितारा गदीर में, चमका है बस अली का ही सितारा गदीर में। जनाब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
अल्लाह की रजा हो तो बंदा खरीद ले, अल्लाह की रजा हो तो बंदा खरीद ले, रबे अली जो चाहे तो काबा खरीद ले, चैलेंज दे रहा हूँ खुले दो जहान को, है जो कोई हुसैन का सज्जा खरीद ले। अल्लाह के रसूल का फरमान है गदीर, मौला अली की शान का ऐलान है गदीर, अपने पराए लोगों की पहचान है गदीर, इस्लाम करबला है तो ईमान है गदीर। फजीलतों का समंदर कहाँ से लाओगे, फजीलतों का समंदर कहाँ से लाओगे, बुलंदियों का ये मजहर कहाँ से लाओगे, बयान अपनी बड़ाई का करते हो कर लो, मगर गदीर का मिंबर कहाँ से लाओगे। सुभान अल्लाह खादिक, सुभान अल्लाह। फरिश्ते करते हैं नूरे हुसैन को सजदा, फरिश्ते करते हैं नूरे हुसैन को सजदा, खुदा नहीं है मगर काबिले परस्तिश है, खुदा नहीं है मगर काबिले परस्तिश है, खुदा खरीद चुका नफ्स मुर्तजा को फिर होना था, खुदा खरीद चुका नफ्स मुर्तजा को फिर, कोई बताए कि अब्बास किसकी ख्वाहिश है, कोई बताए कि अब्बास किसकी ख्वाहिश है। शेख बोले कि दुश्मन हमें मजबूर न समझे, हम वादे तिफली को बचाने में लगे हैं, सज्जाद जरा बढ़ के शरीयत को संभालो, हमने जैसे कुरान बचाने में लगे हैं। अज़्मो वफ़ाओ सब्रो सलीका समेट के, अज़्मो वफ़ाओ सब्रो सलीका समेट के, करबो बला ने दे दिया क्या क्या समेट के, बैठे डरे हुसैन पे जितने भी हैं फकीर, सब ले गए हुसैन का सबका समेट कर। फितरूस के मांगने का सलीका अजीब था, एक पल में दे दिया सारा समेट के। सुभान अल्लाह। शायर को इससे पहले की दावत से बंधु कि गोद में लेकर बिनते असद का माह मुनव्वर देख रहे हैं, गोद में लेकर बिनते असद का माह मुनव्वर देख रहे हैं, रूह अली में मुरसले आजम अपना मुकद्दर देख रहे हैं, गोद में लेकर बिनते असद का माह मुनव्वर देख रहे हैं, रूह अली में मुरसले आजम अपना मुकद्दर देख रहे हैं, तो मकाम मौजूद यहाँ पर इसका नकीर रहता है कहाँ, जितने हैं हाजी काबे के चक्कर अब भी लगा कर देख रहे हैं, तो मकाम मौजूद यहाँ पर इसका नकीर रहता है कहाँ, जितने हाजी काबे के चक्कर अब भी लगा कर देख रहे हैं, तो खुम में सरे हारिस पर गिरा था एक जो पत्थर कहरे खुदा का, खुम में सरे हारिस पे गिरा था एक जो पत्थर कहरे खुदा का, अरे घबराहट में जाने कितने अपने सरों को देख रहे हैं, एक जो पत्थर कहरे खुदा का। हारिस जैसे बहुत थे, हारिस ने आकर इनकार कर दिया, खुलेआम आकर इनकार कर दिया, वरना हारिस जैसे बहुत थे। खुम में सरे हारिस पे गिरा था एक जो पत्थर कहरे खुदा का, घबराहट में जाने कितने अपने सरों पर देख रहे थे, तो खुम में नबी ने सोचा कि देखे जोर ज़ईफ़ी में है कितना, तवज्जो कीजिएगा, खुम में नबी ने सोचा कि देखे जोर ज़ईफ़ी में है कितना, अरे फातह खैबर को हाथों पर अपने उठा कर देख रहे हैं, खुम में नबी ने सोचा कि देखे जोर ज़ईफ़ी में है कितना, फातह खैबर को हाथों पर अपने उठाकर देख रहे हैं। गुजारिश जनाब मौलाना इखलास गनी भाई साहब से दुआएं नजराने गरीब पेश करें, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु।
आवाज़ बुलंद नारे सलवार। मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ पाया। तुम जानशी में अहमदे मुख्तार हो अली, तुम जानशी में अहमदे मुख्तार हो अली, काबे में ये कहा है तुम्हें देखने के बाद, मीसम की आंखें चूमी है हूरों ने दार पर, ये मर्तबा मिला है तुम्हें देखने के बाद, ये मर्तबा मिला है तुम्हें देखने के बाद। सलवात पढ़ें हज़रात। तुझसे अली के नूरे खुदा जलवा बार है, रुख से अली के नूरे खुदा जलवा बार है, हैदर की दीद ताते परवरदिगार है, बादे रसूल दहेर का वो ताजदार है, बादे रसूल दहेर का वो ताजदार है, जिसके शर्फ पे आए बल्लिग निसार है, सूरज पलट के देगा गवाही इस अम्र की, सूरज पलट के देगा गवाही इस अम्र की, दुनिया है क्या फलक पे तेरा अख्तियार है, दुनिया है क्या फलक पे तेरा अख्तियार है, क्यों आ रहे हो इसके मुकाबिल गासिबो, क्यों आ रहे हो इसके मुकाबिल गासिबो, कब्जे में जिसके गर्दिश लैलो नहार है, सूरज पलट के देगा गवाही से अम्र की। मानने वाले तुझे वास्ता है, तुझे तेरे पाक जगह मासूमीन के जितने भी हाज़रीन हैं जायज़ हाजात रखते हैं कि जायज़ हाजात को पूरा फरमा, मानने वाले जो बीमार उन्हें शफाए कामिला और आजिला अता फरमा, मानने वाले जो मकरूज़ उनके कर्ज पैदा फरमा, मानने वाले जहाँ जहाँ भी परेशान हाल उनकी परेशानियों को बरतरफ फरमा, मानने वाले रोज़ ईद अकबर है, ईद सईद गदीर है, ईद में ईदी तकसीम होती है, हमें ईदी के तौर पर ईरान को फतह और कामयाबी इनायत फरमा, ज़ालिमीन को नेस्त नाबूद फरमा, जहाँ जहाँ भी शान हैदर करार उनकी जान और माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, ज़ालिमीन को मुनाफिकीन को नेस्त नाबूद फरमा, मदीनात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, मुल्क ईरान को कवी से कवी तर फरमा, यमन की हिफाजत फरमा, जहाँ जहाँ भी शान हैदर करार
मुदाफे है, जालिम के खिलाफ बरसर पैकार है, उन सब को तमाम आफत अर्दी और समवी से महफूज फरमा, सामने वाले जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब फराहम फरमा, आखिरी ईमान के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हम सबको उनके आला अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात को तहे दिल से ईद अकबर की मुबारकबाद पेश करता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम